ابھی آپ سب کو معلوم ہے کہ اننت ناگ میں ایک بدنصیبی ہوئی، ایک واردات ہوئی، ایک سپاہی جام بحق ہوئے۔ یہ کنسرن کا باعث ہے ہم سب کے لیے، خاص طور پر اس خطے میں رہنے والے لوگوں کے لیے۔ اور قانون کے اندر کام کیا جائے اور تفتیش کی جائے، تحقیق کی جائے، تاکہ جو ملزم ہیں، مجرم ہیں، ان کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے۔ بہت ضروری ہے اور بہت مناسب بھی ہے۔ لیکن جو ابھی خبریں مل رہی ہیں مختلف علاقوں سے، خاص طور پر ساؤتھ کشمیر کے مختلف علاقوں سے، لگ رہا ہے کہ قانون کی عمل آوری جو ہونی چاہیے قانونی مشینری کے ذریعے، اس میں خلل پڑ رہا ہے۔ قانون کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ قانون شکنی کا جواب قانون کی پاسداری سے ہوگا، قانون شکنی سے نہیں۔ آج تک کا تجربہ یہ بتا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، اور آپ جانتے بھی ہیں، عرصے سے اس میدان میں رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں، مطالعہ کرتے رہے ہیں، اور وکٹم بھی رہے ہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ، کتنے ہی لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی، نہیں رہے۔ اور جہاں تک کشمیری عوام کا تعلق ہے، جموں کے عوام کا تعلق ہے، میرے خیال میں بڑی رائے ہے یہ کہ کوئی بھی واردات تشدد کی وہ ہمارے دکھوں کا علاج نہیں۔ تجربے سے سیکھا ہے ہمارے لوگوں نے، اور ایک مستحکم رائے بن رہی ہے ہر خطے میں، اور ہر نقطہ نگاہ جو رکھنے والے ہیں، الگ الگ سیاسی عقائد، مذہبی عقائد، علاقائی جو ان کا طور طریقہ ہے، تجربے کی بنیاد پر سیکھ رہے، لیکن سرکار نہیں سیکھ رہی۔ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جن کو جو مشینری ہے ہمارے پاس، قانون کو نافذ کرنے والی مشینری، اگر وہی قانون کا لحاظ نہیں رکھ لیں گے، بلا قانون شکنوں کی وہ طرفداری ہی ہوگی، اس سے ان کو ہی فائدہ ہوگا جو قانون شکن ہے۔ تو تجربہ ہمیں یہ بتا رہا، میں تو اپنی طور پر بتاؤں گا، کشمیر کے لوگ تو جانتے ہی ہیں، جموں کے لوگ بھی جانتے ہیں، عرصے سے خاص طور پر یہ جو پیریڈ رہا ہے، اتار چڑھاؤ دیکھا ہے۔ تو تجربے کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی کہیں، غصے میں آ کر، اشتعال میں آ کر آپ ڈرائے دھمکائے عام جنتا کو، وہ اس مسئلے کا حل کبھی نہیں تھا۔ وہ مسئلے کو اور زیادہ پیچیدہ بنانے کا کام ہی آج تک ایسا ہوتا آیا ہے۔ ضرورت ہے ہماری کہ قانون شکنی جو ایکسٹریمزم ہے، جو تشدد کو سیاست کا ایک ذریعہ مانتے ہیں، میری نظر میں وہ ہمیں قبول نہیں، وہ ہمارے مفاد میں نہیں۔ یہ ایک اب یہ سچائی ہمارے سامنے ہے، ہمارے عوام کے سامنے، اور تجربے سے وہ سیکھ رہے ہیں۔ لیکن گلے شکوے اپنی جگہ،
सियासी नुक्ते निगाह अपनी जगह, नाराजगियां अपनी जगह, लेकिन ये समझदारी पैदा हुई है कि वायलेंस इज नॉट द सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स। हर मकतब फिक्र, खास तौर पर जो भी एक कंसेंसस जैसा बन रहा है हमारी सोसाइटी में, कौन है जो ऐसी वारदातों के हक में होगा? वो जो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ सया आ जाए ताकि घोड़े वाला, पोने वाला, होटल वाला, ये जो ऑटो वाला, ये जो लोग हैं यहाँ, दुकानदार छोटा, वो चाहें खलल पड़ जाए उनके रोजी रोटी में? हरगिज नहीं। ये कश्मीर के अवाम के दोस्त नहीं हो सकते हैं जो ऐसे अनासर हैं, ये तजुर्बा बता रहा है। लेकिन अब इन वारदातों पर रोक लगाना ये तो जिम्मेदारी है हम सब की, लेकिन खास तौर पर कानून के जो मुहाफिज है, जो मशीनरी बनी है, जो सिक्योरिटी ढांचा है, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। और मुझे ये यकीन है कि उनमें कई लोग ऐसे हैं जो कानून के दायरे के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसी हालात भी बन रहे हैं जहां कुछ लोग सबक नहीं सीख रहे हैं तजुर्बे से। अंधाधुंध लिस्ट बनी है थानेदार के पास, SHO के पास, कभी कोई गिरफ्तार हुआ है, नाम लिखा है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ दूर इलाके में भी हो जाए तो लोग उसको गिरफ्तार कर लो। अरे इससे क्या होगा? हाहाकार मचाने से आप डर पैदा कर लेंगे। किन में? आम जनता में, जो आपके जिनके लिए ये मशीनरी बनी है ताकि उनको राहत मिले, जो ये खुद दुआ गो हैं वो लोग, क्या अमन कायम रहे? रोक लगनी चाहिए। ये जो रिस्पांस है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अंधाधुंध गिरफ्तारियों का, रोक लगनी चाहिए। ये अवाम के मुफाद में है, ये अमन अमल के मुफाद में है। और अगर किसी को इसका फायदा है, इस जंग का फायदा है, वो उन अनासिर का है जो ये नहीं चाहते हैं कि नॉर्मल सी आ जाए, अमन कायम हो। दूसरी बात इसके अलावा, इसके साथ ही जो हमें अब भी ये समझना होगा कि जो जेलों में हैं, तो थानों में हैं, उनको रहा किया जाए। और जो लोग मतलब खोज की जाए, तहकीकात की जाए। अभी जमहूरियत कभी शायद अभी चैप्टर वो क्लोज हुआ नहीं पूरे तौर पर। अभी आईन भी, मुल्क का आईन अभी भी मौजूद है, नजरअंदाज मत कर लीजिए। एक सिटीजन के राइट्स भी है, हुकूक भी है, और जब सिटीजन के राइट्स को माना नहीं जाता है तो फिर वही होता है जो आज मुल्क में हो रहा है, नौजवान पीढ़ी में खास तौर पर। ये तजुर्बा है, सीखना चाहिए यहाँ के लोगों को भी, बाअसर लोगों को सीखना चाहिए, हम सबको। डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड। ये बड़ा सबक है देश के पैमाने पर और यहाँ पर भी। मेरा मुतालबा है उनको रहा किया जाए, जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, उन्हें रहा किया जाए। और मैंने असेंबली में भी कहा, अब भी कहा, क्या एतमाद साजी की जरूरत है। एतमाद साजी ये नहीं कि हम ये कहेंगे कि अगर कोई मुजरिम है उसको छोड़ा जाए, उसको इंसाफ के दायरे के अंदर लाना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन तहकीक करके, आइडेंटिफाई करके बिल्कुल कार्रवाई हो। लेकिन इसके अलावा आवाम जो है, जनता, उनमें एतमाद पैदा करने की
कोशिश हो, अगर एतमाद पैदा करने का अभी इतना चौड़ा सीना नहीं है हुकाम के पास, लेकिन मेरा मशवरा होगा, जोर जबरदस्ती से दूरियां बढ़ जाती है, कम नहीं होती। जोर जबरदस्ती से अमन अमल में खलल पड़ता है, अमन अमल को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। ये तजुर्बा है हम सबका। और इसलिए अभी मसलन मैंने ये भी कहा था, कई लोगों ने कहा, और असेंबली में जब कुछ पुलवामा में वारदातें हुई कि बुलडोजर चला गया, भाई किसी का रिश्तेदार किसी जुर्म में मुलविस था तो उनके रिश्तेदार, उनके हमसाया, उनके मकान गिरा दो। अरे कहाँ का ये जंगल राज नहीं है। जंगल राज से बाहर आना चाहिए हुकाम को। मैं आज भी कहना चाहूंगा, अभी जो अगर किसी ने जुर्म किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, सजा मिलनी चाहिए उसको, यह हमारी मांग है, लेकिन कानून के दायरे के अंदर। और बुलडोजर किसी को नोटिस दिए बिना, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है हर शहरी को छत रखने का अधिकार है, हर शहरी को। गुड सिटीजन, बैड सिटीजन जो भी है, इधर का है, उधर का है, शुमाल का है, मशरिक का है, मगरिब का है, कौन किस अकीदे के साथ ताल्लुक रखता है। कोई किसी का रिश्तेदार हो और उसका छत गिराया जाए बगैर किसी नोटिस के, सरकार की जिम्मेदारी होती है छत की सहूलियात देना, छत गिराना नहीं। और वो भी बिला वजह, वो भी बगैर नोटिस, कायदा ज़ाबिता का लिहाज ना रखते हुए। और इसलिए मैं एक शहरी होने के नाते हुकाम से यही मुतालबा कर लूंगा, बस करो, ये ढंग ठीक नहीं है। मुजरिमों को सजा मिले, ये हम सब चाहते हैं, और मुजरिमों को बेनिकाब किया जाए बहुत जरूरी है। लेकिन एक अफसोसनाक वारदात, काबिल मजम्मत वारदात, तहकीकात हो, हम सब चाहते हैं, लेकिन उसकी आड़ में अगर आम लोगों को परेशान किया जाए तो ये तरीका रास आता है मुजरिमों को, कानून के पासदारों को नहीं। ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा मुतालबा है। कल से जो है मुल्क में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही है। देर शाम को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक वीडियो स्टेटमेंट आता है। नए हफ्ते जो है पार्लियामेंट में एक बिल आने वाली है जो कि पेपर लीक्स के खिलाफ होगी। कुछ समय बाद ही जो है ड्राफ्ट उसका जो है फाइनलाइज होने वाला है यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री में। सो हाउ डू यू सी दीस डेवलपमेंट्स कमिंग फ्रॉम द न्यू? आप नेशनल सतह के मसले पर आ गए। देखिए, मैंने सिर्फ रेफरेंस दी थी। मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि जहां तक अभी जो एजिटेशन जारी है, मैंने वो रखा है उधर फैज अहमद फैज का, बोल के लब आजाद है तेरे। बोल के जुबान अब तक तेरी है। और मैंने ये भी फैज साहब का इशारा रखा है, बोल के सच जिंदा है अब तक। ये अहले इक्तदार के लिए ज्यादा जरूरी है। मुल्क के अवाम को फॉर ग्रांटेड लेना, साइलेंस को इकरार मानना, खामोशी को तामील मानना, तामील से ताबीर करना बड़ी गलती है। मैंने कई बार दोहराया, आज फिर मैं ये दोहराता हूं, हमारे मुल्क के अवाम ने तारीख साज कौन है? मुट्ठी भर लीडर नहीं, सरकारें नहीं, तारीख साज है हमारे अवाम, जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को जिनका सूरज गुरूब नहीं होता था, भागना पड़ा।
और मिला क्या, हासिल क्या किया, हासिल सोवरेनिटी मिली। सोवरेनिटी क्या है, सिर्फ ये नहीं कि जो हमारा खिता है, पहाड़ है, सरहदें हैं, इसके अलावा जो सरहदों के बीच में रहने वाली जनता है वो खुद मुख्तार हो गए, खुद मुख्तार बन गए। अपने मुस्तकबिल को संवारने की जिम्मेदारी उन्होंने कबूल की, उनको ये अधिकार मिला। अरे अधिकार मिला ये कि इतना एजिटेशन चल रहा है और आप बात भी नहीं करते, और बात नहीं करते हैं, कोई आपके पास टाइम नहीं है बात करने का। पार्लियामेंट और जंतर मंतर के दरमियान कितना फैसला है, 25 दिन 26 दिन भूख हड़ताल जारी है लड़कों की, और जो हमारे वांगचुक साहब हैं, कोई पूछता नहीं है। और पूछने के लिए जब भेजा जाता है, वो पुलिस को भेजा जाता है डंडे लेकर। ये मेरा मुल्क, ये मेरे मुल्क की पहचान नहीं है। मेरे मुल्क की पहचान है, मेरे मुल्क की स्ट्रेंथ जो है वो पुलिस नहीं है, वो कुछ गैर कानूनी कानून नहीं है, बल्कि इजहार राय, आजादी का हक, बोलने का हक, तहरीर का हक, सरकार को नुक्ताचीनी करने का हक, शहरी आजादियां, मीडिया की जिम्मेदारियां और आजादी। यार ये आपने तोहफे में नहीं दिया, किसी ने, किसी बादशाह ने हमें, हमारी जनता को एज गिफ्ट नहीं मिला है, हमें ये लड़कर मिला है, लंबी जद्दोजहद के बाद मिला है, और आप इसको भी मिसमार कर लें। इतना गुरूर। बच्चे हैं हमारे, बच्चियां हैं हमारी, किस जात के साथ है, कहां से हैं, क्या मांगते हैं, वो तालीम पढ़ते हैं। तालीम क्यों पढ़ते हैं? कि ताकि जॉब मिले, अपने माँ बाप की खिदमत कर सके, अपनी जिंदगी को संभाल सके। और फिर नीट के नाम पर आप एग्जाम कंडक्ट करने की बात करते हैं, और उसमें हेरा फेरी खुल्लम खुल्ला, एक बार नहीं। ये जो अभी प्रधान है, ये जो अभी मिनिस्टर है, ये आज की बात नहीं, इससे पहले भी इनका रिकॉर्ड देख लीजिए, ये पहली बार ऐसा हुआ नहीं। और आज लाखों लोग, और फिर कुछ लोग अपनी जिंदगी का नजराना भी खुदकशी पर, कौन खुदकशी करता है, कौन करता है अपनी जिंदगी को का खात्मा। अरे यार, उन्होंने फार्म भरे थे ताकि उनका रोजगार मिले, रोजगार के बजाय मायूसी। दूर दराज इलाकों में, हर खिते में कर्ज करके पढ़ाई करते हैं, और फिर ऐसा तालीमी निजाम, जो पहले तालीमी निजाम था, हिस्ट्री थी, साइंस था, उसका बिगाड़ किसने किया? साइंस नाम की चीज, उस पर आज रोक लगाई जा रही है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में। सेंट्रलाइज क्यों करना है इन एजेंसीज को? हमारा मुल्क इतना बड़ा है जहां सिर्फ एक ही सिलेबस नहीं है, बल्कि और कई कई प्राइवेट इदारों में, सरकारी इदारों में गरीब बच्चे पढ़ने वाले हैं। यार उनके लिए भी गुंजाइश रख लो। ये सारी बातें हैं, ये एक ही बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, और ये भविष्य का सवाल है हमारे नौजवानों का, यंग इंडिया का ये भविष्य है, इस पर आंच आई है। और अगर वो मुतालबा कर ले, सरकार ना माने, और सरकार माने तब जब वहां फिर सरकार का चेहरा सामने आता है खुलकर। और माशाअल्लाह हमने वो चेहरा यहां देखा 2016 में, जब पैलेट इस्तेमाल हुआ, और आज उस पैलेट का इस्तेमाल, खबरें हैं अखबार में, इस्तेमाल हुआ है, दोहराया गया है। आज ये मैं नहीं, आपके अखबार कहते हैं, चैनल्स कहते हैं। अरे शर्म करो, तारीख से, हालात से, वाक़ात से, इस तजर्बे से सबक सीखो। मुझे मालूम नहीं कल क्या होने वाला है, मैं सिर्फ ये कहूंगा
कि सरकार को चाहिए था पहले दिन ही नौजवानों की बात सुने, अनसुनी ना कर ले। और आजकल फिर मैंने देखा है कि वहां दिल्ली पुलिस को नेशनल सिक्योरिटी के तहत और इख्तियारात दिए गए, पैलेट इस्तेमाल करके कश्मीर के मॉडल को वहां इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे साहब बस करो। और जवानों ने दिशा दी है, ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, बड़ा कंट्रीब्यूशन, ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। जुबान खोली उन्होंने और एक मैसेज दी अहली इक्तदार को, यू कांट टेक अस फॉर ग्रांटेड, जनता को की बात को सुनना ही पड़ेगा। सॉरी में हमारा मुतालबा है, मेरा दिल चाहता है मैं भी जाऊं वहां, उन बच्चों के साथ बैठूं। लाठियां गालियां खा के हम बेमजा न हुए यहाँ, तो लाठियां खाकर वहां भी कैसे दूर रहेंगे। बहरहाल हमें उम्मीद है, ये नहीं कल क्या होगा, आप कहेंगे कल होगा, वो होगा, ये होगा, कल क्या होगा, लेकिन कल यही होगा कि मेरे नौजवान ने मैसेज दिया है। एक उम्मीद का चिराग कहीं दिखाई देता है, अब बुझेगा नहीं। इसी उम्मीद के साथ इस विषय पर इतना ही।